I welcome you all in this online Sunday school. मैं आप सबों का आज के इस ऑनलाइन संडे स्कूल में स्वागत करती हूँ। आइए हम अपनी आँखों को बंद कर लें और छोटी सी प्रार्थना के साथ इस प्रोग्राम का आरंभ करेंगे। Thank you, Lord Jesus, for this wonderful time that you have given us. Thank you, Lord, for all the blessings that you have given us in our life. We glorify your name, Lord. We honor your name. Father, as we start our Sunday school, help us, Lord, to understand you better. Help us, Lord, to worship you with one heart and one mind. In Jesus' precious name we pray. Amen. So friends, आज हम कुछ स्टोरीज को सुनेंगे, मेमोरी वर्स से याद करेंगे और एक्शन सॉन्ग को भी करेंगे. So are you ready for some action song? We're going to dance on the song We Are Marching in the Light of the Lord. And we are going to also see the story of Moses. कुछ समय से, कुछ संडे से हम लगातार मोसेस की स्टोरी को सुनते आ रहे हैं. हम मोसेस की स्टोरी को आज कंटिन्यू करेंगे. But we are going to go in the journey with the Israelites from Egypt to Canaan. हम इज़राइलिट्स की जर्नी को देखेंगे, किस तरीके से परमेश्वर उन्हें अद्भुत चमत्कार, अद्भुत मिरेकल्स के साथ इजिप्ट से कैनान देश में लेकर के जाते हैं, which is the modern Israel of today. So enjoy the story, dance with us and worship the Lord. Praise the Lord. I am Jasper. Let's read Psalms chapter 20, verse 1 to 9. May the Lord answer you in the day of trouble. May the name of God of Jacob defend you. May he send you help from the sanctuary and strengthen you out of Zion. May he remember all your offerings and accept your burnt sacrifice.
May He grant you according to your heart's desire and fulfill all your purposes. We will rejoice in your salvation, and in the name of our God, we will set up our banners. May the Lord fulfill all your petitions. Now I know that the Lord save His anointed. He will answer him from His holy heaven with the saving strength of His right hand. Some trust in the chariots and some in the horses. But we will remember the name of the Lord our God. They have bowed down and fallen, but we have risen and stand upright. Save, Lord. May the King answer us when we call. Thank you. आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। मेरा नाम इशिता है। आज मैं आपके लिए भजन संहिता अध्याय 20 पद संख्या 1 से 9 पढ़ना चाहती हूँ। आइए हम सब साथ मिलकर पढ़ेंगे। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाल ले। वह तेरे सब अन्न बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुँह मांगा वरदान दे। अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त और उद्धार करता है। वह अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। हे यहोवा बचा ले। जिस दिन हम पुकारे तो महाराजा हमें उत्तर दे। धन्यवाद। अभी तक हमने देखा कि हाउ गॉड हेल्प्ड हिज पीपल टू कम आउट ऑफ बॉन्डेज। कैसे अद्भुत तरीके से गॉड इज़राइलियों को तकलीफ और परेशानियों में से आज़ाद करते हैं। Don't you think, friends? It is wonderful that we all are His children and He is our Father. आज हम आगे की स्टोरी सुनेंगे। We will see what more God did for His people. So come with me to the journey from Egypt to Canaan, which is now, at present, modern Israel. Friends, by now you already know, Pharaoh का मन तो कठोर ही रहा, because God had hardened his heart to perform some more miracles. और ऐसे पावरफुल किंग के किंगशिप से भागना कोई मामूली बात नहीं था। इज़राइली तो नॉर्मल मेरे और आपके जैसे लोग थे। They did not have any special arms to fight with their enemy. इज़राइली लोग काफ़ी नॉर्मल लोग थे। उनके पास ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जैसे गन्स या तीर जिससे वो अपने शत्रु से लड़ते। But they had their living God with them. And friends, hold on your breath, because I am going to tell you something that will surprise you, the wonderful works of God. आप सोच भी नहीं सकते, what can our Father in heaven do? अब इज़राइली इजिप्ट से निकल तो गए, मगर बहुत सारी परेशानियां उनका इंतज़ार कर रही थी। फ्रेंड्स, जिस देश में गॉड उनको ले जाना चाहते थे, द कंट्री फ्लोइंग विथ मिल्क एंड हनी, वहाँ जाने के दो रास्ते थे। एक वो जो नॉर्थ ईस्ट फिलिस्टाइन कंट्री होकर जाता था, ये था शॉर्टर रूट, और दूसरा जो साउथ ईस्ट डेजर्ट होकर जाता था, ये था लॉन्गर रूट, और इसी लॉन्गर रूट में रेड सी भी पड़ता था। एंड गॉड टुक देम थ्रू लॉन्गर रूट। गॉड उनको लंबे रास्ते से लेकर जाते हैं। एंड द बाइबल सेज God knew that if they take the shorter route and face any battle,
they might return to Egypt. गॉड को पता था कि अगर शॉर्टर रूट से ये जाएंगे और कोई विपत्ति आए तो ये वापस इजिप्ट को चले जाएंगे. फ्रेंड्स, आवर फादर इन हेवन नोज अस बेटर दैन वी नो आवरसेल्व्स. गॉड को हमारे बारे में सब कुछ पता है. वो जानते हैं कि हमें कब क्या चाहिए, मगर वो चाहते हैं कि हम पहले उनसे मांगे ताकि हमें उसकी वैल्यू पता रहे. अब इज़राइलिट्स चलते जा रहे थे. वे सब डेजर्ट में चलते ही जा रहे थे. फ्रॉम सुकोद दे रीच्ड एदम, द एज ऑफ विल्डरनेस. इमेजिन फ्रेंड्स, हॉट सन, रास्ते में कुछ भी नहीं और ढेर सारे लोग चलते ही जा रहे हैं. उनको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा. बट एज आई ऑलवेज से, गॉड इज अ मर्सीफुल गॉड. ही इज आवर रियल फादर. ही इज स्ट्रिक्ट विथ अस व्हेन वी डू रॉन्ग. He puts us into trouble, but he is also capable of taking us out of all the troubles. और इज़राइलियों के साथ भी ऐसा ही हुआ. उनको परेशानियों का, तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा था. But you know what God did? He protected them with the pillar of clouds. बाइबल बताती है मेघ का खंबा दिन में उनकी रक्षा करता था और वही खंबा रात में आग का खंबा बन जाता था. Isn't it amazing? Imagine you are playing in a hot sun and God brings a cloud over your head so that you don't feel the heat और आप आराम से खेल पाएं. See how God's powerful hand was upon his people. God protected them at night and in the morning. He protected them from darkness at night and from the heat in the morning. And that is why it is written in Psalms chapter 91 verse 5 and 6, You shall not be afraid of the terror by night, nor the arrows that flies by day, nor the pestilence that walks in darkness, nor for the destruction that wastes at noonday. तू ना तो रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उजाड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है. इसलिए फ्रेंड्स, आपको आज के बाद से अंधेरे से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आग का खंभा आपके चारों ओर है. और ना ही दिन में डरने की आवश्यकता है, क्योंकि बादल का खंभा आपके साथ है. अब किंग फ़ारो और उनके ऑफिशियल्स को ख्याल आता है कि अरे, ये हमने क्या कर दिया, सब इज़राइलियों को जाने दे दिया, अब हमारा काम कौन करेगा. नाउ एज यू नो, किंग फ़ारो वॉज अ स्मार्ट गाय. वो अपनी सेना को इज़राइलियों का पीछा करने के लिए बोलता है. किंग फ़ारो अपनी बेस्ट आर्मी रेडी करवाता है. सम 600 चैरियट्स, कुछ 600 रथ और हर रथ में एक लीडर. बट फ्रेंड्स, सोचने वाली ये बात है कि फ़िरौन को क्या ज़रूरत थी कि वो आर्मी रेडी करवाता और उसे भेजता. क्या सारे इज़राइली उनके एक ऑर्डर पर वापस नहीं आ जाते. बट फ्रेंड्स, अब वो जान गया था कि इट इज़ गॉड हु इज़ फाइटिंग फॉर हिज पीपल, एंड सो ही सेंड्स हिज पावरफुल आर्मी टू ब्रिंग देम बैक. The Egyptian army now reached to the place where the Israelites had camped. Now they had encamped before Pi-hahiroth, between Migdol and the sea, opposite to Baal-zephon, somewhere near to the Red Sea. Seeing the Egyptian army coming towards them, the Israelites got very scared. अपनी ओर इजिप्शियन आर्मी को आता देख सारे इस्राएली बहुत ही ज़्यादा डर गए, क्योंकि उन्हें पता था कि ये आर्मी तो बहुत ही शक्तिशाली है. अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम सब मारे जाएंगे. अब सारे इज़राइली मोसेस के ऊपर चिल्लाने लगे. सब बोलने लगे, तू हमें यहाँ क्यों ले आया है? हमने बोला था कि हमें वहीं रहने दो, वैसे ही काम करते रहने दो. तुम हमारी सुने ही नहीं, बस हमें यहाँ ले आए. अरे कम से कम इजिप्ट में हम मरते तो हमारी कब्र तो होती, कम से कम हम रिस्पेक्टफुली मरते वहाँ. अब हम यहाँ मरेंगे तो हमारी कब्र भी नहीं होगी. फ्रेंड्स, कितनी ही मुसीबत में थे ये सारे इज़राइलिट्स. एक तरफ सी
और दूसरी ओर एक पावरफुल इजिप्शियन आर्मी, चारों ओर प्रॉब्लम। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि चारों ओर प्रॉब्लम हो? जैसा कभी एग्ज़ाम सर पर है और आपका रिवीजन हुआ ही ना हो और आपको बस ये लगे कि बस शायद इस बार तो मैं फेल ही हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। बिल्कुल सेम सिचुएशन था। दोनों तरफ डेथ, दोनों तरफ प्रॉब्लम। तभी मोसेस बोलता है, होल्ड ऑन, डोंट बी अफ्रेड। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात सोचने वाली है। दोज पीपल whom God saved did not have faith, but Moses still had faith. वो लोग जिनको गॉड इतना हेल्प किए थे, उनमें से किसी को भी फेथ नहीं था, लेकिन मोसेस को था। उनका ट्रस्ट आज कहीं खो गया था। वो सब मोसेस के ऊपर चिल्ला रहे थे। बट समथिंग दैट यू शुड थिंक इज, फॉर एवरीथिंग मोसेस प्रेड. Now, after seeing the powerful army, he did not pray. Instead, he is saying, have faith and don't be afraid. तुम खड़े खड़े उस उद्धार के काम को देखोगे जो यहोवा तुम्हारे लिए करेगा। तुम जो इजिप्शियंस को आज देख रहे हो, उनको फिर कभी ना देखोगे। Now, God says to Moses, what are you talking to the people? तुम खड़े खड़े मेरी दुहाई क्यों दे रहे हो? Go from here. यहां से जाओ, जल्दी जाओ। And friends, you cannot imagine what happened when Moses obeyed God. God Moses से बोलते हैं, तू अपनी लाठी उठा। God said to Moses to lift up his staff. जैसे ही मोसेस अपनी लाठी उठाता है, फ्रेंड्स, रेड सी दो भाग हो जाता है। The water of the Red Sea gets divided for the people of God to walk through. इतना ही नहीं फ्रेंड्स, the angel of the Lord जो उनके आगे आगे उनको रास्ता दिखाता था, वो पिलर ऑफ क्लाउड के साथ उनके पीछे चला जाता है। And now there is a pillar of cloud between the army of Pharaoh and the beloved people of God, the Israelites. Remember friends, I had told you that this pillar of cloud would become pillar of fire at night. See the favor of God here. The pillar of fire gave light only to the Israelites, while the Pharaoh's army was in total darkness. और जब रात हुआ तो जो ये पिलर ऑफ फायर था, वो सिर्फ इज़राइलियों को रोशनी दिया, लेकिन फ़ैरो की आर्मी पूरे अंधकार में रही। फ्रेंड्स, अगर आप फ़ैरो की आर्मी में होते तो क्या करते? क्या आप गॉड को वर्शिप नहीं करते, या आप ये कहते कि कुछ भी हो जाए, हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं? यहाँ किंग फ़ैरो की आर्मी गॉड को बहुत कैजुअली और लाइटली ले रही थी, और हम भी कई बार ऐसा करते हैं। हम गॉड के फेवर को, उनकी मर्सी को काफ़ी लाइटली लेने लगते हैं। हम उनको थैंक्स तक नहीं बोलते। हम भूल जाते हैं कि गॉड वेट्स फॉर अस। गॉड को हमारा थैंक यू नहीं चाहिए फ्रेंड्स, मगर वो हैप्पी हो जाते हैं जब हम उनको थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि रेड सी में क्या क्या हुआ। Now as you know that the water of the Red Sea was divided for the people of God to walk through. सिर्फ इतना ही नहीं, the God made the strong east wind to blow through the Red Sea, ताकि रेड सी का ज़मीन सूख जाए। See the provision of God, my dear friends. He gives the best to his children. वो चाहते तो गीली ज़मीन में से इज़राइलियों को लेकर के जा सकते थे, उनको कोई परेशानी नहीं होती। But God made the grounds completely dry. वो पूरी ड्राई ग्राउंड में से लेकर के गए। Isn't that amazing? Now the Israelites went happily in between the Red Sea. रेड सी के बीच में से होकर इज़राइली जाने लगे। कितना ही मज़ा आ रहा होगा। दोनों तरफ वाटर के वॉल्स और बीच में से सब जा रहे हैं। वेरी एडवेंचरस, राइट? अब इजिप्शियन आर्मी भी उनके पीछे पीछे आई और चलते चलते आर्मी सी के बीच में आ गई। Now, early morning, God saw
the Egyptian army through the cloud of fire. गॉड ने इजिप्शियन आर्मी को बादल और आग के खंबे में से देखा और उन्हें कंफ्यूज कर दिया। उनकी चैरियट्स, उनकी रथों के व्हील्स को जाम कर दिए और शायद व्हील्स इंटैंगल्ड हो गए होंगे, जैसे बाइसिकल का चेन फंस जाता है, या फिर कुछ व्हील्स का सपोर्ट टूट गया होगा। उनकी व्हील्स अब बढ़ ही नहीं रही थी, अब वे वहीं रुक गए। हाउएवर द इज़राइलिट्स वहाँ से भागते चले गए। They walked with full boldness. Now God said to Moses to stretch out his hand. और जैसे ही मोसेस ने हाथ बढ़ाया तो water of the Red Sea started flowing again. और फिर क्या हुआ? पूरा इजिप्शियन आर्मी उसमें बह गया। इज़राइलियों को लगा था कि वे लोग मर जाएंगे वहां पर, मगर मरा कौन? उनके शत्रु। फ्रेंड्स, गॉड उनको इसीलिए बचाए क्योंकि ही इज़ अ प्रॉमिस कीपिंग गॉड। अगर आप गॉड को अपना फादर, अपना सेवियर मानते हैं तो गॉड के आप बेटा और बेटी बन जाते हैं। इफ़ यू से गॉड यू आर माई फादर, यू ऑटोमेटिकली बिकम हिज चिल्ड्रन एंड ही लव्स हिज चिल्ड्रन। ऑल दैट वी नीड टू डू इज़ टू ट्रस्ट गॉड। हमें गॉड में भरोसा रखना है। कैसा भरोसा? जैसा आपको भरोसा है कि आप जिस चेयर पे बैठे हैं वो आपको गिरने नहीं देगा, वैसे ही भरोसा आपको गॉड पे रखना है। भरोसा जिसमें कोई डाउट नहीं हो। कंप्लीट फेथ, कंप्लीट ट्रस्ट। आपको हर काम अपने बेस्ट एफर्ट के साथ करना है, बाकी गॉड में ट्रस्ट करना है। इज़राइलिट्स इजिप्ट में अपना काम बेस्ट करते थे, बहुत मेहनत करते थे और पेन में भी थे, तो फ़ैरो के पास नहीं, गॉड से बोलते थे और इसीलिए गॉड मोसेस को वहाँ भेजे। सो फ्रेंड्स, आज से हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स के लिए एक बार प्रेयर ज़रूर करेंगे, बिकॉज रिमेंबर गॉड इज़ वेटिंग टू लिसन टू यू, as you know it already that you are precious and beautiful. Let's see the memory verse, which is Psalms chapter 56 verse 3. When I am afraid, I put my trust in you. आज के मेमोरी वर्स को देखें, जो है Psalms chapter 56 verse 3. जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा।
आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि गॉड हेल्प द इजराइलाइट्स, परमेश्वर ने इजरायलियों की रक्षा करी और उनकी मदद करी, बट उसके लिए इजरायलियों को उन पर भरोसा करना पड़ा. सो फ्रेंड्स, इफ़ यू वांट गॉड टू हेल्प यू, यू हैव टू ट्रस्ट इन द लॉर्ड. आपको भी परमेश्वर पर भरोसा रखना पड़ेगा. सो लेट्स लुक टू गॉड इन प्रेयर एंड सबमिट आवरसेल्व्स बिफोर द लॉर्ड. आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे और आज के संडे स्कूल को अंत करेंगे. Dear Lord Jesus, we thank you for your blessing and for your grace that is upon us. We thank you, Lord, that you're always with us. You care for us. You take care of us. Thank you, Lord, for your presence in our life. Bless us, guide us, and help us, Lord. In Jesus' most holy name, we ask this prayer. Amen. अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से सर्वदा तक होती रहे. आमीन. थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बीइंग विद अस. आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए. फिर से हम नेक्स्ट संडे आपसे मिलेंगे. तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टडी वेल एंड टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एज वेल. बाय बाय.